یہ جوڈیشری یہ چاہتی ہے کہ کل عمران خان یہ کہے نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو چیف جسٹس۔ کورٹ کی روایات کو پامال کر کے انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور تمام عدلیہ کے ججز کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھٹو اس ہائی کورٹ میں اپنے پروسیڈنگز کے باہر نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا نو کورٹ، بھٹو نے کہا تھا نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو جمی کارٹر۔ اور ہمیں دل خون کے آنسو روتا ہے، مجھے آج بھٹو یاد آ رہا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو کہتا تھا نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو جمی کارٹر۔ تو کیا آپ لوگ بنیادی طور پہ جو آپ کل پرسوں سپریم کورٹ نے یہ بینچ بنایا ہے اس کے خلاف ہم لوگوں نے یہ ہاؤس کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جسٹس اعجاز الحسن جو اس کمیٹی کے رکن ہے جس نے بینچ کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کو، اور انہوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ جو بینچ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ان کی اپیل سننے کے لیے جو بینچ بنایا گیا ہے، وہ بینچ کے اندر جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کی پروینس کو پامال کیا گیا اور ساتھ ان روایات کو پامال کیا گیا جن کی بنیاد کے اوپر بینچ بنتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ان خدشات ریزرویشنز کو خط کی شکل میں چیف جسٹس کے سامنے رکھا۔ اسی طرح سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس جواد خواجہ نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر جس نے ملٹری کورٹس کے اپیل سننی ہے۔ دیکھیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بینچز کی سیاست ہے اس نے ایسے ایسے گھاؤ لگائے ہیں پاکستان کے اندر، ایسے ایسے گھاؤ لگائے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے، ہمارا سماج ہے، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ بینچز کی جو سیاست تھی یہ انصاف دینے کے لیے نہیں، یہ جو بینچز بنائے جاتے ہیں وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ من پسند فیصلے لینے کے لیے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور یہی آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم سب لوگ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم نے قانون سازی کی، جسٹس فائز عیسیٰ پارلیمان کے اندر گئے، وہ بڑی جمہوریت کو شاباش دینے پارلیمنٹ کے اندر گئے۔ یہ وہی پی ڈی ایم تھی جس نے وکلا پروسیجر وہ پروٹیکشن ایکٹ بنایا، اس کے بعد جتنا ظلم وکلا کے اوپر ہوا جمہوریت نام نہاد جمہوریت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو بنا کے جن سپریم کورٹ کی روایات کو پامال کر کے انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے اس کی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ابھی چند دن پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک خط لکھا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کو، اور انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے اپنے جو بھی ان کے اپنے حقوق کا تحفظ مانگا تھا سپریم کورٹ سے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ آپ نے اس کو جواب دے دیا۔ تو کیا ایک سابق وزیر اعظم یا کوئی بھی شہری جو اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے کیا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں خط لکھے گا؟ کیا وہ آرمی چیف کو خط لکھے گا؟ کیوں آپ لوگوں نے ان کو انصاف نہیں دیا؟ کل جس طرح ختیجہ شاہ کے ساتھ ہوا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جوڈیشری ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پہلے یہ سیاسی ورکرز اور سیاسی خواتین کو ایک کیس کے اندر ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس کے اندر، تیسرے کیس میں، چوتھے کیس میں پھر ان کو ایم پی او میں ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، اور اب اس کو قتل کے مقدمے کے اندر ایک دوسرے پروونس کے اندر لے کے جا گئے۔ اس کے بعد کیا آپ کے پاس جواز رہ جاتا ہے کہ آپ ان عہدوں کے اوپر کام کریں؟ کیوں چیف جسٹس پاکستان آپ نے ان انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس نہیں لیا؟ تو کیا اس طرح آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کہ یہ لوگ اپنے جو ہے یہ الیکشنز کنٹیسٹ کر سکیں؟ کیا ساری سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا اور سیاسی ورکرز کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے؟ ابھی آپ بھٹو کیس کی دوبارہ آپ نے سنوائی شروع کی۔ یہ وہ بھٹو کیس ہے کہ جس کو سپریم کورٹ کو 50 سال کے بعد آج خیال آیا کہ ہم نے بھٹو کو انصاف دینا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھٹو کیس کے فیصلے کو تو عوام نے اسی دن مسترد کر دیا تھا، اس دن بھی ایک بینچ تھا۔ اسی طرح چیف جسٹس پاکستان انوار الحق نے وہ بینچ بنایا تھا، اس نے بینچوں کی سیاست کی اور اس نے ان ججز کو پہلے ریٹائر کروایا
जो भुट्टो के हक में फैसला दे रहे थे, और उसके बाद उसने भुट्टो का सियासी और अस्करी कत्ल किया, जिसके बाद पाकिस्तान को आज तक उस सियासी कत्ल का, उस अदालती कत्ल का पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा है। इसी तरह 16 दिसंबर आने वाली है। 16 दिसंबर आप जो जर्नैलों की सियासत है पाकिस्तान के अंदर, आपका पाकिस्तान टूट गया था, और आज हम रोते हुए दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आज भी ना अदलिया ने कुछ सबक सीखा और ना इन जर्नैलों ने कुछ सबक सीखा। आज भी वही रवैये हैं। अभी कल की बात है कि बलोचिस्तान ये KPK से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो अपनी सियासी जमात के इज्तिमा के लिए पंजाब आना चाहते थे, तो उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पख्तूनिस्तान बना के दिखाएंगे। तो क्या तुम फिर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? हमारा ये सवाल है कि क्या तुम फिर पाकिस्तान को तुमने बांग्लादेश बनाया, इसको तुमने कंगलादेश बना रहे हो, क्या तुम फिर और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हो? तो अभी भी शर्म करो, अभी भी कोई सबक सीखो, कोई जो आपकी तारीख है, स्याह तारीख है, उससे कुछ सबक हासिल करो। कल जी यही बात अब होने लगी है। कल एक और वाकया हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर पता चला, डिवीजन बेंच बैठा था कि एक केस के अंदर बलूचिस्तान कैंट में कोई नोटिस की किसी केस में तामील कराने के लिए गए, तो अदालती एहलकारों को रोक दिया कि आप उधर कैंट में दाखिल नहीं हो सकते। ये कब्जा है आपके मुल्क के ऊपर, ये कब्जा है जिससे आप शहरियों ने और आपने अपनी आखिरी जंग लड़के इस कब्जे को छुड़वाना है। और जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है, इतना टाइम ज़ाया किया। 1 मिनट की बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बन सकती, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और हमेशा जो भी हमारे जमहूरियत पसंद तबकात है, बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो अगर आपने फिर यही कुछ करना है तो फिर GHQ में जाके सीधे अदालतें लगा लें। फिर क्या मिलिट्री कोर्ट्स, फिर जाए फिर उधर ही जाके अदालतें लगाएं और GHQ इंसाफ दे लोगों को। अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख के। और आखिर में मैं जस्टिस फायद ईसा जैसे कहूँगी कि आज फिर एक तारीख दोहराई जा रही है। जो भुट्टो वाली तारीख थी ना, अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो जो आपके पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, आप उनको इंसाफ दे के तारीख तब्दील करें। आप भुट्टो के फैसले को, अब आपने क्या उसको इंसाफ देना है भुट्टो को, वो भुट्टो को नहीं पूरी कौम को के साथ बेइंसाफ़ी की गई। और आज आप फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं कि उसी तरह आप साबिक वज़ीर आज़म का खुफिया ट्रायल कर रहे हैं। जिस तरह भुट्टो को जब उसने कहा कि मैंने बात करनी है तो अदालती कमरे ये हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था, किसी को भुट्टो की बात नहीं सुनने दी गई थी। आज वही आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। आज उसको भी उसी तरह आप चाहते हैं कि उसका ट्रायल कोई ना देखे और उसको खुफिया अदालत के अंदर उसी तरह तारीख पर नजर डालें। जब भुट्टो के खिलाफ आपने गवाह क्रिएट किए और आपने क्या वो था मसूद खान जो इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था, आपने उसको 2 माह अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको भुट्टो के खिलाफ गवाह के तौर पे पेश किया। इसी तरह आज आजम खान भी गायब रहा था। आपको ये PDM थी जिसने वुकला प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। उसके बाद जितना जुल्म वुकला के ऊपर हुआ, जमहूरियत नाम निहाद जमहूरियत के अंदर इसके मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको बना के जिन सुप्रीम कोर्ट की रवायात को पमाल करके इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, उसकी भी मिसाल हमें नहीं मिलती। अभी चंद दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ख़त लिखा था जस्टिस फायद ईसा को, और उन्होंने अपनी जमात के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से अपने जो भी उनके अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जस्टिस फायद ईसा आपने उसको जवाब दे दिया। तो क्या एक साबिक वज़ीर आज़म या कोई भी शहरी जो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं खत लिखेगा? क्या वो आर्मी चीफ को खत लिखेगा? क्यों आप लोगों ने उनको इंसाफ नहीं दिया? कल जिस तरह खदीजा शाह के साथ हुआ, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती। पहले ये सियासी वर्कर्स और सियासी खवातीन को एक केस के अंदर जमानत मिलती है, दूसरे केस के अंदर, तीसरे केस में, चौथे केस में फिर उनको MPO में डिटेन कर लिया जाता है।
और अब उसको कत्ल के मुकदमे के अंदर एक दूसरे प्रोविंस के अंदर लेके जा गए। इसके बाद क्या आपके पास जवाब रह जाता है कि आप इन ओहदों के ऊपर काम करें? क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपने इन इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस नहीं लिया? तो क्या इस तरह आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे कि ये लोग अपने जो है ये इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें? क्या सारी सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का और सियासी वर्कर्स को सियासी अमल में हिस्सा लेने का हक हासिल नहीं है? अभी आप भुट्टो केस की दोबारा आपने सुनवाई शुरू की। ये वो भुट्टो केस है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को 50 साल के बाद आज ख्याल आया कि हमने भुट्टो को इंसाफ देना है। तो हम आपको ये बता दें कि भुट्टो केस के फैसले को तो अवाम ने उसी दिन मुस्तरद कर दिया था। उस दिन भी एक बेंच था। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवारुल हक ने वो बेंच बनाया था। उसने बेंचों की सियासत की और उसने उन जजेस को पहले रिटायर करवाया जो भुट्टो के हक में फैसला दे रहे थे, और उसके बाद उसने भुट्टो का सियासी और अस्करी कत्ल किया, जिसके बाद पाकिस्तान को आज तक उस सियासी कत्ल का, उस अदालती कत्ल का पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा है। इसी तरह 16 दिसंबर आने वाली है। 16 दिसंबर आप जो जर्नैलों की सियासत है पाकिस्तान के अंदर, आपका पाकिस्तान टूट गया था। और आज हम रोते हुए दिल के साथ ये कह रहे हैं कि आज भी ना अदलिया ने कुछ सबक सीखा और ना इन जर्नैलों ने कुछ सबक सीखा। आज भी वही रवैये हैं। अभी कल की बात है कि बलोचिस्तान ये केपी के से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो अपनी सियासी जमात के इज्तिमा के लिए पंजाब आना चाहते थे, तो उनको जब रोका गया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पख्तूनिस्तान बना के दिखाएंगे। तो क्या तुम फिर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? हमारा ये सवाल है कि क्या तुम फिर पाकिस्तान को तुमने बांग्लादेश बनाया, इसको तुमने कंगलादेश बना रहे हो? क्या तुम फिर और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हो? तो अभी भी शर्म करो, अभी भी कोई सबक सीखो, कोई जो आपकी तारीख है, स्याह तारीख है, उससे कुछ सबक हासिल करो। कल जी यही बात अब होने लगी है। कल एक और वाकया हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर पता चला, डिवीजन बेंच बैठा था कि एक केस के अंदर बलूचिस्तान कैंट में कोई नोटिस की किसी केस में तामील कराने के लिए गए, तो अदालती एहलकारों को रोक दिया कि आप उधर कैंट में दाखिल नहीं हो सकते। ये कब्जा है आपके मुल्क के ऊपर, ये कब्जा है जिससे आप शहरियों ने और आपने अपनी आखिरी जंग लड़के इस कब्जे को छुड़वाना है। और जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है, इतना टाइम ज़ाया किया। 1 मिनट की बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बन सकती, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और हमेशा जो भी हमारे जमहूरियत पसंद तबकात है, बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो अगर आपने फिर यही कुछ करना है तो फिर GHQ में जाके सीधे अदालतें लगा लें। फिर क्या मिलिट्री कोर्ट्स फिर जाए, फिर उधर ही जाके अदालतें लगाएं और GHQ इंसाफ दे लोगों को। अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देख के। और आखिर में मैं जस्टिस फायज ईसा जैसे कहूँगी कि आज फिर एक तारीख दोहराई जा रही है। जो भुट्टो वाली तारीख थी ना, अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो जो आपके पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, आप उनको इंसाफ दे के तारीख तब्दील करें। आप भुट्टो के फैसले को अब आपने क्या उसको इंसाफ देना है भुट्टो को? वो भुट्टो को नहीं, पूरी कौम को के साथ बेइंसाफ़ी की गई। और आज आप फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं कि उसी तरह आप साबिक वज़ीर आज़म का खुफिया ट्रायल कर रहे हैं। जिस तरह भुट्टो को जब उसने कहा कि मैंने बात करनी है तो अदालती कमरे ये हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था, किसी को भुट्टो की बात नहीं सुनने दी गई थी। आज वही आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। आज उसको भी उसी तरह आप चाहते हैं कि उसका ट्रायल कोई ना देखे और उसको खुफिया अदालत के अंदर उसी तरह तारीख पर नजर डालें। जब भुट्टो के खिलाफ आपने उनको गवाह क्रिएट किए और आपने क्या वो था मसूद खान जो इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था, आपने उसको 2 माह अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको भुट्टो के खिलाफ गवाह के तौर पे पेश किया। इसी तरह आज आजम खान भी गायब रहा था। आपको याद होगा कि वो भी आजम खान को गायब किया गया और फिर आज के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह की गवाहियाँ तराशी गईं। और भुट्टो ने, आपको याद है क्या कहा था? जस्टिस फायज ईसा और तमाम अदलिया के जजेस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भुट्टो इस हाई कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग्स के बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था नो कोर्ट। भुट्टो ने कहा था नो कोर्ट नो जस्टिस।
थैंक यू जिमी कार्टर। और हमें दिल खून के आंसू रोता है। मुझे आज भुट्टो याद आ रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, जो कहता था नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। तो क्या आप लोग ये जुडिशरी ये चाहती है कि कल इमरान खान ये कहे नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। और इस तारीख को बचा लो, अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को बचा लो। बहुत शुक्रिया।